Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ विच इज़ अबाउट द न्यू नेवल इंसाइन. हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की थी दैट Prime Minister Narendra Modi is going to unveil the new naval sign and the Navy is going to get the new one. And हमने हमारी लास्ट वीडियो में जो कल तक का जो एग्जिस्टिंग हमारा नेवी इंसाइन था उसे हमने देखा and we saw that it was more together inspired from what we had in the colonial times and हमने उसकी हिस्ट्री को देखा. But today the Indian Navy has got its new naval ensign. Prime Minister Narendra Modi has unveiled the new naval ensign, the new naval flag for Indian Navy. और ये unveiling कोची में की गई थी and during this unveil now the flag of Indian Navy bears the seal of छत्रपति शिवाजी महाराज. छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सील है उसे इंडियन नेवी का एंसाइन फ्लैग के तौर पे यूज़ किया जाएगा. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैज़ लेड द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न नेवी एंड देयरफॉर कीपिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन माइंड द इंडियन नेवी हैज़ गॉट द न्यू ensign, the new naval ensign with the Chhatrapati Shivaji Maharaj seal on that. So with this we'll have to understand that a lot of question comes. First of all, how does Indian Navy identify with Shivaji? Now when we are talking about Shivaji and we are focusing on his reign from 1674 to 1680, and along with this there is this great Maratha admiral Kanhoji Angre. उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं? हाउ डू आर इंडियन नेवी आइडेंटिफाई विद कान्होजी आंग्रे एंड हाउ डिड दे इंश्योर दैट देयर इज मराठा सुप्रीमेसी ओवर द सीज? तो ये सब चीज़ों को समझेंगे. तो अब आप देखें किस तरह से लिंकिंग हुई है. डिफेंस की न्यूज़ है कि इंडियन नेवी को एक न्यू फ्लैग मिल गया है, लेकिन क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सील यहाँ पे यूज़ की है तो मराठा सुप्रीमेसी किस तरह सीज के ऊपर डेवलप थी, शिवाजी का क्या रोल था, द मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे का क्या रोल था, वो सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा. सो दिस रिलेट्स टू द हिस्ट्री एज वेल. सो लेट्स बिगिन विद इट. नाउ द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू टच is Chhatrapati Shivaji Maharaj and the seas. Now when you read the history, we see that Shivaji, he had this great emphasis on seafaring powers. He basically laid the foundation of the modern navy force. Especially when you talk about Shivaji Maharaj, so now we are talking about 17th century. 17th century में he was giving emphasis on the seafaring prowess, and therefore we say that it is Chhatrapati Shivaji Maharaj who laid the foundations of modern naval forces in the 17th century. And already अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी का एक ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है इन लोनावला जिसे कहा जाता है INS शिवाजी. ऑलरेडी we had this training establishment in Lonavala जिसका नाम है INS शिवाजी. And there is this shore based logistics and administrative hub basically of the Western Naval Command, उसे कहा जाता है INS Angre. And this INS Angre is basically after Kanhoji Angre, who was an acclaimed Maratha naval commander. So now if you actually look at the new flag, so you can see that first of all it has this octagonal design. अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें, so this is an octagonal design and this is the design of Shivaji, the seal of Shivaji. उसकी जो frontal stamp है, you can see that the formal stamp,
especially on the the ties that Indian Navy has with the Navy of Maratha Empire. तो यहाँ से मराठास, छत्रपति शिवाजी, इनका रोल हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नाउ if we talk about the extent of the naval prowess, Shivaji had this strategic thought in which he ensured that if you have a strong naval presence, and they established that strong naval presence along the Konkan coast so that they can protect their sea trade. मराठा एम्पायर का जो सी ट्रेड था, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए शिवाजी ने अपनी कोंकण कोस्ट के पास जो प्रेजेंस थी, जो नेवल प्रेजेंस थी, उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया. एंड द नेवी अंडर शिवाजी वाज सो स्ट्रॉन्ग that Marathas could hold, even against the Britishers, Portuguese, Dutch. Now, this is something that we really need to know about, because when we talk about modern history, so we see that कि जब ये colonial powers आती हैं, जब Britishers की बात करते हैं, Portuguese की बात करते हैं, तो यहाँ पे blue water policy सामने आता है, who has the more power in the water. And जब हम शिवाजी की बात कर रहे हैं, especially the navy under शिवाजी, at that point of time Marathas were so strong that they can even hold against these colonial powers. Having said that, Shivaji built ships. There were some towns like Kalyan, Bhivandi, Goa. यहाँ पे ships manufacture किए जाते थे, and these ships were used for both trade purpose as well as for establishing the fighting navy. He also built numbers of sea forts and bases जहाँ पे इनकी repair हो सके. There could be the provision of storage and shelter. And Shivaji has also fought many lengthy battles with the Siddhis of Janjira, which were fought on the coastline. तो जो सिद्धीज ऑफ जंजीरा है, उनके साथ कोस्ट लाइन की वो बैटल जो है वो फाइट की गई. एंड देन ही स्टार्टेड ट्रेडिंग विद फॉरेनर्स on his own after the possession of the 8 or 9 ports in the Deccan. So that is the supremacy that Shivaji had when we talk about the naval power, the naval supremacy. Apart from this, Kanhoji Angre is again in news because of the said reasons, the role of Maratha. Now we are talking about Kanhoji Angre because he was the commander of Maratha Navy. So he was the commander of Maratha Navy, and he is credited for laying such a strong naval foundation, and which basically ensured that Marathas were a seafaring power to reckon with. He credited his holding with against English, Portuguese, Dutch naval forces, as we just said कि navy force इतनी ज़्यादा strong थी इनके अंडर. He also ensured कि जो भी merchants हैं, they are having their trade done through the Maratha Empire, and that were even protected on the seas. He also set up a base in Kolaba, with more bases at this Suvarnadurg and Vijayadurg, which is basically near Ratnagiri. So this was about Kanhoji Angre. You should also know about Siddhis of Janjira. देखो जंजीरा एक princely state थी. Janjira state was a princely state. ब्रिटिश राज के दौरान जंजीरा एक प्रिंसली स्टेट थी, एंड द रूलर्स वर सिद्धि डायनेस्टी ऑफ हाबेशा डिसेंट. तो यहाँ पे जो रूलर्स थे, दे वर ऑफ सिद्धि डायनेस्टी ऑफ हाबेशा डिसेंट, एंड दिस स्टेट वाज बेसिकली अंडर द सुज़ेरेनिटी ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आता था. इट वॉज लोकेटेड ऑन द कोंकण स्टेट, जहाँ पे प्रेजेंटली अगर हम देखें जो महाराष्ट्र का जहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है, दैट वाज द जंजीरा स्टेट एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश राज. तो इनके साथ मराठास की वॉर होती है, विच वॉज द लॉन्ग कोस्ट लाइन वॉर दैट वॉज फॉट विद द हेल्प ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग नेवल पावर दैट मराठास हैड. सो दिस वॉज अबाउट द न्यू नेवल एनसाइन ऑफ इंडियन नेवी. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट
आर्टिकल GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट स्पार्क प्रोग्राम. अब आप इमेजिन करें, थिंक अबाउट इट, कैन दिस कम इन योर प्रीलिम्स? ऑफ कोर्स. हाउ डू यू रिलेट स्पार्क प्रोग्राम? व्हाट इज इट? बिकॉज अल्टीमेटली ये एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है स्पार्क. अब इससे क्या पता चलेगा कि ये क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पार्क इज स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन. स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन. This is basically for Ayurveda students who are studying in the recognized Ayurveda colleges. For them we have the studentship program. ठीक है, तो पहली चीज़ स्पार्क बोलते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आयुर्वेदा. कि ये स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है किनके लिए? आयुर्वेदा रिसर्च के इनके लिए, फॉर द आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द आयुर्वेदा कॉलेजेस. What is the news about? So recently, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences has taken this unique step, this unique initiative by which we want to support the research efforts done by the bright young minds of our country. So to support their research efforts, the studentship program has been launched, which is Spark, to bring Spark for the Ayurveda students. अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बात, एक तो आपको पता होना चाहिए कि स्पार्क प्रोग्राम है क्या, राइट? आयुर्वेदा रिसर्च की सपोर्ट के लिए ये है. किसने ये इनिशिएटिव लिया है? दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज. ये चीज़ आपने याद रखनी है. दिस कैन कम एज अ वन लाइनर इन योर प्रीलिम्स एग्जाम. नाउ वी नीड टू फॉलो सम डिटेल्स. तो एज वी सेड, दिस इनिशिएटिव इज बाय CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस. पता होना चाहिए आपको. एम क्या है? द एम इज टू सपोर्ट द रिसर्च आइडियाज ऑफ द यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन द आयुर्वेदा कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया. तो रिसर्च आइडियाज किसके? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए. एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है. जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी रिसर्च प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं. ये पूरा स्पार्क पोर्टल इसके लिए बना है. एंड जो प्रपोजल्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाएगा, और इवैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट्स और रिव्यूअर्स को बुलाया जाएगा. दे विल इवैल्यूएट, एंड देन जो सेलेक्टेड फेलोज होंगे दे विल बी ऑफर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 50,000 अंडर द फेलोशिप. तो इसमें 50,000 फेलोशिप के अंडर फाइनेंशियल सपोर्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए दिए जाएंगे. सो दिस इज़ द स्पार्क प्रोग्राम. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, पहली चीज़ तो ये कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस में आए हैं, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं ये उसको सपोर्ट करेगा. ऑल्सो इससे जो कल्चर है कि दे शुड बी दिस एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च, उसे प्रमोट करेंगे. स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मेडिसिन. ट्रेडिशनल मेडिसिन की फील्ड में एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये बड़ा स्टेप है. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप दैट एक्यूमेन दैट दे हैव टू रिसर्च फॉर समथिंग. Their research ideas will, you're supporting their research ideas, you're incentivizing their research ideas. So it will build this whole together an ecosystem, an acumen for research. So that is the significance of it. अब क्योंकि ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है CCRAS ने, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, तो अगर डायरेक्टली स्पार्क से क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है कि CCRAS से आ जाए. इसे भी तैयार करना होगा. तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, दिस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसमें आयुर्वेदा, सुगरिकपा, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, दिस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. And when it comes to formulation, coordination or development for the promotion of research in Ayurveda, Sowa Rigpa system medicine,
which is based on scientific line, CCRS is the apex body for that. So Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, it is the apex body when it comes to formulate, coordinate or develop or promote the research done on scientific lines in Ayurveda and the related fields. इसमें बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं ताकि ओवरऑल सिटीजन्स को इससे बेनिफिट हो. दे हैव ऑल्सो दिस क्वालिटी रिसर्च एक्टिविटी, उन्होंने काफ़ी एक्सलरेट कर दिया है इसे फॉर आयुर्वेदा एंड अलाइंड साइंसेज एज वी सेड. द काउंसिल हैज़ दिस नॉट ओनली डेवलप्ड पॉपुलर फॉर्मुलेशन, जैसे कि एक हमारे पास आता है आयुष 64. दिस बेसिकली हैज़ 18 फॉर्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी. It is currently working with R&D projects in collaboration with research universities or institutes in Romania, Germany, Israel, Canada, WHO, even USA. So that is what this council is currently working on. So this was about the Spark program. It is important. Moving ahead, so next in news is Group of 7, which is G7. तो next हमारा जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. G7 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वी टॉकिंग अबाउट G7, बिकॉज रिसेंटली दे हैव एग्रीड टू इम्प्लीमेंट अ प्राइस कैप ऑन द ऑयल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया. एक वर्चुअल मीटिंग होती है G7 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की, जिसमें G7 कंट्रीज़ ने एग्री किया है दैट दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग द प्राइस कैप ऑन द ऑयल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया. सो देयरफॉर विल बी डिस्कसिंग G7. इस मोटिव का क्या मूव है, ग्रुप इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा, प्राइस कैपिंग क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, इनको समझेंगे, रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा एंड एवरीथिंग. एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट G7 हियर एज वेल. ना इससे पहले कि आगे बढ़े, पहली रिक्विजिट ये है कि आपको पता हो कि G7 कंट्रीज़ हैं कौन कौन से. सो यू शुड नो अबाउट G7 कंट्रीज़. तो हमारे पास यहाँ पे 7 कंट्रीज़ हैं. वाओ. इन ऑर्डर यू कैन लर्न देम इज़ UK, US, Canada, UK, US, Canada, Germany, France, Italy. UK, US, Canada, Germany, France, Italy. UK, US, Canada, Germany, France, Italy. These are the G7 countries. You cannot forget these countries. You cannot afford to forget these countries. आपको G7 countries पता होने चाहिए. G7 is UK, US, Canada, Germany, France, Italy. Right? Okay जी. Now coming down to the issue. Now basically why the G7 countries are putting this price cap on the Russian imports, oil imports. This is basically, there is this cutting off a source of financing for Russia. Because Russia is invading Ukraine, and if you will keep on buying the oil, you are financing Russia. So to cut off the source of financing, this move has been done. Now here UK is the major global center, London is the major global center for maritime insurance, and it plays a very hinge when it comes to denying shipping to oil above the price cap, and that is the motive behind it. Group implementation की बात है, एक joint political intention यहाँ से निकल के आई है, जिसमें जो services हैं उनको यहाँ पे prohibit किया जा रहा है to make the maritime transportation of Russian origin crude oil globally. Price capping एक्चुअली में कितना सेलिंग प्राइस किया जाएगा वो भी डिसाइड नहीं हुआ है, बट G7 कंट्रीज़ ने इनपुट देने के लिए सबको ओपन रखा है. इनिशियल प्राइस कैप वुड बी बेस्ड ऑन द टेक्निकल इनपुट्स और इनको सब्सिक्वेंटली रिवाइज किया जाएगा. रीज़न वही है, वी वांट टू लिमिट G7 कंट्रीज़, दे वांट टू लिमिट रशिया फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट्स वॉर ऑफ एग्रेशन एंड टू लिमिट इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस. ऑलरेडी हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द G7 कंट्रीज़, इन्फ्लेशन इस वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है. स्पेशली दोज जो कि रशियन सीबॉर्न पेट्रोलियम की डिलीवरी में इन्वॉल्व थे,
they will be permitted to provide services, but if the price is below the cap. There are some challenges in implementation because for the price cap to work, India, China, the two countries are importing a lot of Russian oil at low and discounted prices. We need to work for this as well. As we all know that India had purchased Russian oil, at a very low cost or discounted price after the invasion of Ukraine, and government is defending the move on grounds of national interest. Now, the expected thing is that G7 is aiming to align the timing of the price cap with European Union's ban. EU is going to ban the seaborne import of crude oil from Russia. तो इसके साथ मिलकर ये G7 की अनाउंसमेंट जो प्राइस कैप है वो डिसाइड हो सकता है. अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखो, रशिया वुड हैव लिटिल चॉइस बट टू सेल देयर ऑयल एट द रिड्यूस्ड प्राइस. अब क्योंकि अब ये प्राइस कैप लगाया जाएगा तो उस प्राइस कैप से रशिया से ऑयल खरीदा जाएगा, लेकिन दैट ऑयल वुड बी एट द रिड्यूस्ड प्राइस. दिस इज़ द एम कि जो फाइनेंसिंग हो रही है रशिया की उसे डिक्रीज़ किया जाए. बट जैसे कि इंडिया, चाइना और अदर कंट्रीज आर आउट ऑफ दिस कोएलिशन, दे स्टिल वांट टू बाय द रशियन ऑयल चीपली एज पॉसिबल, एंड द ऑल्टरनेटिव इंश्योरेंस विल बी कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव. So to enforce the cap, it relies heavily on denying the London brokered shipping insurance, जो कि 95% world tanker fleet cover करता है. The finance to cargoes, they will be priced above the cap. But the alternative to this, the market has to play a role that is ineffective here. तो implications क्या रहेंगी वो तो इसके apply होने के बाद पता चलेगा. Coming down to G7, it is an intergovernmental organization जिसमें 7 countries present हैं, and these 7 countries are world's most industrialized and developed economies. They don't have any formal constitution, they don't have any fixed headquarter. इनके जो decisions हैं वो annual meetings के basis पे लिए जाते हैं, इनके leaders meeting करते हैं, and जो decisions होते हैं these are non-binding. These decisions are non-binding. एंड अगर हम G7 कंट्रीज़ देखें तो कुल मिलाकर ये 40% ग्लोबल GDP बनाते हैं एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. G7 हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस. It does not have any permanent secretariat or an official members as we said. It has no binding impact on the policy. The policies, the decisions that are taken, these are non-binding. जेनेसिस जब हम देखते हैं तो इसका ओरिजिन गोज़ बैक टू 1973's oil crisis. During that point of time, there was this informal meeting between the finance ministers of the France, West Germany, US, Britain, Japan, and at that point of time they were G5 because these were only 5 countries. G5. 1973 ऑयल क्राइसिस के टाइम पे आता है, जिसके बाद इसे कनाडा ज्वाइन करता है 1976 में, एंड EU became the attending their meeting from 1977. They were called as G8, लेकिन जब रशिया ने ज्वाइन किया था 1997 में, रशिया ने भी G7 को ज्वाइन कर लिया था तो कंट्रीज़ बन जाती हैं G8. लेकिन जब 2014 में रशिया क्रीमिया के ऊपर अटैक करता है, द रीजन ऑफ यूक्रेन, at that point of time the Russia was expelled as a member of G8, and again this organization was called as G7. तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें इनकी पता होनी चाहिए. This was about G7. ये भी पता होना चाहिए आपको कि रशिया इसका मेंबर था, G8 था, फिर उसके बाद 2014 में क्रीमिया की एनेक्सेशन के बाद रशिया को एक्सपेल कर दिया गया. अगैन दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकेम G7. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.